السلام علیکم، خوش آمدید۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارا کام پسند ہے تو اسمارٹ اسکوپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، اور ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو 1000 سبسکرائبرز ماہانہ چیلنج میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جنہیں آپ دیکھیں دوست اور دشمن دونوں ہی عزت سے یاد کرتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ عام طور پر تو انہیں ایک عظیم فاتح سمجھا جاتا ہے، لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایسا شخص جو جوانی میں کتابوں اور عبادت میں دلچسپی رکھتا تھا، وہ تاریخ کا دھارا موڑنے والا سپاہ سالار کیسے بن گیا، اور کیا اس کی اصل طاقت تلوار تھی یا اس کا کردار؟ حکمت عملی کی اور ایک بکھری ہوئی قوم کو متحد کرنے کے عزم کی کہانی ہے۔ ان کا سفر تکریت کے ایک کرت نوجوان سے شروع ہوا اور عالم اسلام کے سب سے طاقتور حکمران پر ختم ہوا، لیکن اس سفر میں انہوں نے اپنی شخصیت کا کون سا پہلو سب سے زیادہ استعمال کیا، یہی آج کی گفتگو کا مرکز ہوگا۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا نام یوسف ابن ایوب تھا، 1137 میں پیدا ہوئے۔ جوانی میں جیسا میں نے کہا جنگ سے زیادہ علم میں دلچسپی تھی، تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ مطلب وہ ایک عالم سے سپاہی کیسے بنے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو ان کے حالات تھے، اور دوسرے ان کے استاد سلطان نور الدین زنگی۔ نور الدین خود ایک بہت ہی انصاف پسند اور متقی حکمران تھے۔ صلاح الدین نے ان سے سیکھا کہ طاقت کا اصل مقصد انصاف قائم کرنا ہے۔ ان کی زندگی کا جو فیصلہ کن موڑ آیا نا، وہ تب تھا جب وہ اپنے چچا شیر کوہا کے ساتھ مصر کی مہم پر گئے۔ اچھا۔ اور یہ کوئی عام فوجی مہم نہیں تھی۔ اس وقت مصر کی جو فاطمی خلافت تھی وہ شیعہ تھی، اور سیاسی طور پر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ انہیں صلیبیوں سے بچنے کے لیے اپنے سنی حریف یعنی نور الدین زنگی سے فوجی مدد مانگنی پڑی۔ یعنی دشمن سے مدد مانگنے کی نوبت آ گئی تھی۔ یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے۔ بالکل، اسی مدد کے بہانے صلاح الدین اور ان کے چچا مصر میں داخل ہوئے، اور پھر حالات نے ایسا پلٹ کھایا کہ شیر کوہ کی وفات کے بعد 1169 میں صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ وزیر بن گئے وہ؟ جی، اور پھر صرف 2 سال بعد 1171 میں انہوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ بالکل ختم۔ اچھا۔ اور مصر کو بغداد کی سنی عباسی خلافت کے تحت متحد کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اقدام تھا، کیونکہ اس نے عالم اسلام کے 2 بڑے حریف مراکز کو ختم کر کے مسلمانوں کے اتحاد کی راہ ہموار کی۔ تو یہ بیت المقدس کی آزادی کے عظیم منصوبے کا پہلا قدم تھا۔ بالکل، یہ پہلا قدم تھا۔ اور پھر 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تو مسلم دنیا میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ایسے میں صلاح الدین نے کیا کیا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، ہر طرف افراتفری تھی۔ نور الدین کے جانشین کمزور تھے اور مسلم امراء آپس میں لڑ رہے تھے۔ صلاح الدین نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اگر صلیبیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو پہلے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا ہوگا۔ انہوں نے دمشق، حمص، حلب اور دوسری ریاستوں کو متحد کرنے کا مشن شروع کیا۔ لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ کیا صرف جنگ تھی؟ نہیں، یہی تو خاص بات ہے۔ ان کا طریقہ صرف جنگ نہیں تھا، انہوں نے سفارتکاری کا بھرپور استعمال کیا، شادیاں کی، معاہدے کیے۔ ان کی پہلی ترجیح ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے اور تلوار صرف آخری آپشن ہو۔ لیکن یہ اتحاد قائم کرنا آسان تو نہیں رہا ہوگا، خاص طور پر جب اندرونی دشمن بھی موجود ہوں۔ میں نے حشاشین کے بارے میں سنا ہے، جنہیں اسیسنز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کون تھے اور صلاح الدین سے ان کی کیا دشمنی تھی؟ حشاشین اس دور کا ایک انتہائی خفیہ اور خطرناک گروہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی قیادت راشد الدین سنان نامی شخص کر رہا تھا، جسے پہاڑوں کا بوڑھا کہتے تھے۔ اچھا۔ یہ لوگ سیاسی قتل میں مہارت رکھتے تھے اور صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے اتحاد کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے صلاح الدین کو ختم کرنے کی 2 بڑی کوششیں کی۔ 1175 میں حلب کے محاصرے کے دوران کچھ قاتل ان کے خیمے تک پہنچ گئے، لیکن محافظوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں مار ڈالا۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ قاتل اتنا قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کا ان پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ دوسرا حملہ تو اس سے بھی زیادہ براہ راست تھا۔
1176 में एक कातिल सिपाही का रूप धार कर उनके इतने करीब आ गया कि उसने खंजर से हमला कर दिया। ओह, सलाहुद्दीन ने कोच पहना हुआ था, इसलिए खंजर उनके हेलमेट पर लगा और चेहरा जख्मी हो गया, लेकिन जान बच गई। इन वाकयात के बाद वो बहुत मोहतात हो गए। उन्होंने लकड़ी का एक महफूज टावर बनवाया जिसमें वो सोते थे, और सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी कि कोई अजनबी उनके करीब भी नहीं फटक सकता था। और वो मस्याफ के मुहासरे वाला मशहूर किस्सा भी तो है। जी हाँ, जब सलाहुद्दीन ने हरशाशीन के मरकज मस्याफ को मुहासरा किया तो एक सुबह वो उठे तो उनके बिस्तर के पास तकिए में एक जहरीला खंजर गड़ा हुआ था, अल्लाह। और साथ एक धमकी आमेज खत था। ये हरशाशीन का पैगाम था कि तुम जहां भी हो हम तुम तक पहुंच सकते हैं। ये तो सलाहुद्दीन के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा। बिल्कुल, उन्होंने समझा कि इस अंदरूनी दुश्मन से लड़ने में बहुत ज्यादा वक्त और तवानाई लगेगी, जबकि असल खतरा सलीबी है। चुनाचा उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक फैसला करते हुए हशाशीन से जंगबंदी कर ली ताकि अपनी पूरी तवज्जो असल मकसद पर मरकूज कर सके। तो सलाहुद्दीन ने अंदरूनी दुश्मन से सुलह कर ली ताकि असल दुश्मन पर तवज्जो दे सकें, और इस असल दुश्मन को एक शख्स की हरकतों ने मजीद भड़का दिया था, रेनाल्ड डी चिटिलियन। वो कौन था और ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से एक बड़ी जंग छिड़ गई? रेनाल्ड डी चिटिलियन सलूबियों का एक बदनाम जमाना सरदार था। वो मुआहिदों को तोड़ने, मुस्लिम तिजारती काफलों को लूटने और हाजियों को कत्ल करने के लिए मशहूर था। उसने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि वो मदीना पर हमला करके पैगंबर इस्लाम की कब्र मुबारक को नुकसान पहुंचाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। इसकी यही इश्तियाल अंगेजी और गुस्ताखी वो आखिरी तिनका थी जिसने सलाहुद्दीन को कसम खाने पर मजबूर कर दिया कि वो रेनाल्ड को अपने हाथ से सजा देंगे। और फिर 1187 में जंगे हतीन का मैदान सजा। इस जंग में सलाहुद्दीन की फौजी जहानत का कमाल नजर आता है। उन्होंने क्या हिकमत अमली अपनाई? हत्तीन की जंग हिकमत अमली का एक शाहकार है। सलाहुद्दीन जानते थे कि सलाबी फौज तादाद में ज्यादा है, इसलिए बराह रास्त टक्कर से गुरेज किया। उन्होंने सलाबी फौज को एक ऐसे खुश्क और बंजर मैदान में आने पर मजबूर किया जहां पानी का नामो निशान नहीं था। यानी जानबूझकर? जी, जानबूझकर। इससे पहले उनके दस्ते इलाके के तमाम कुओं और पानी के ज़खायर पर कब्जा कर चुके थे। जब शदीद गर्मी में प्यासी सलाबी फौज वहां पहुंची तो सलाहुद्दीन के सिपाहियों ने मैदान के गिर्द सूखी घास में आग लगा दी। ओह! अब दुश्मन के पास तीन ही ऑप्शन थे, सलाहुद्दीन की फौज, प्यास या आग और धुआं। यानी दुश्मन हर तरफ से फंस गया था। इस जंग का नतीजा क्या निकला? मुकम्मल फतह। सलाबी फौज का बड़ा हिस्सा या तो मारा गया या कैदी बना लिया गया। उनके बादशाह गाय ऑफ लुसिग्नेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। सलाहुद्दीन ने बादशाह को अपने खेमे में बुलाया और इज्जत दी, लेकिन जब रेनाल्ड डी चिटिलियन को लाया गया तो सलाहुद्दीन ने उसे उसके जराइम याद दिलाए और अपनी कसम पूरी की। जी, और अपनी कसम पूरी करते हुए उसे अपने हाथ से कत्ल कर दिया। ये एक बहुत ज़ाती और शदीद अमल लगता है। क्या ये उनकी आम पॉलिसी के खिलाफ नहीं था जो कैदियों के साथ फ्याजी पर मबनी थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये वाकई उनकी आम पॉलिसी के खिलाफ था, और यही चीज़ इस अमल को और ज़्यादा अहम बनाती है। ये इस बात का सबूत था कि सलाहुद्दीन के लिए कुछ उसूल जैसे हाजियों का तहफ़्फ़ुज़ और मुक़द्दस मकामात का एहतराम नाकाबिल मुआफ़ी थे। ये एक पैगाम था। बिल्कुल, ये एक हुक्मरान का पैगाम था कि कुछ हदें पार नहीं की जा सकती। लेकिन इसी दुश्मनी के दौरान उनकी शराफत का एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जो उनके किरदार की दूसरी इंतहा को जाहिर करता है। आप करक के किले वाले वाक़े की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हत्तीन से 4 साल पहले 1183 में जब वो रेनाल्ड के ही किले कर्क का मुहासरा कर रहे थे तो उन्हें इत्तला मिली कि किले के अंदर रेनाल्ड के सौतेले बेटे की शादी हो रही है। मुहासरे के दौरान शादी? जी। तो सलाहुद्दीन को जब इस टावर का बताया गया जहां नौब्याहता जोड़ा मौजूद था तो उन्होंने फौरन अपने तोपखाने को हुक्म दिया कि इस टावर की तरफ कोई गोला ना फेंका जाए। ये तो कमाल है। ये सिर्फ शराफत नहीं थी, ये एक नफ्सियाती चाल भी थी। जब आपके दुश्मन आपको एक वहशी के तौर पर पेश कर रहे हों तो ऐसा अमल उनके पूरे बयानिए को कमजोर कर देता है। सलाहुद्दीन जंग के मैदान के साथ साथ दिलो दिमाग की जंग भी लड़ रहे थे। हतीन की फतह के बाद तो सीधा हदफ बैतुल मुकद्दस ही रहा होगा। 88 साल बाद उस शहर की फतह का लम्हा कैसा था? वो एक तारीखी लम्हा था। 1187 में सलाहुद्दीन की फौज ने यरूशलेम का मुहासरा किया और शहर फतह हो गया।
لیکن यहाँ सलाहुद्दीन का किरदार एक फातेह से कहीं बढ़कर था। 88 साल पहले 1099 में जब सलूबियों ने ये शहर फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों और यहूदियों का बेदर्दी से कत्लेआम किया था। गलियां खून से भरी हुई थी। जी, तारीख इससे भरी पड़ी है। सबको बदले की तवक्को थी, लेकिन सलाहुद्दीन ने आम माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने शहर के ईसाई बाशिंदों को इजाजत दी कि एक मामूली फिदिया अदा करके अमान के साथ शहर से चले जाएं। और मैंने पढ़ा है कि हजारों गरीब लोगों का फिदिया उन्होंने खुद अदा किया था। जी हाँ, उन्होंने, उनके भाई और जनरलों ने हजारों गरीब ईसाइयों का फिदिया अपनी जेब से अदा किया जो अदायगी नहीं कर सकते थे। किसी चर्च को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी शहरी को कत्ल नहीं किया गया। और 88 साल के तवील इंतजार के बाद मस्जिद अक्सा से दोबारा अजान की सदा बुलंद हुई। जी, ये फतह ताकत का नहीं बल्कि रहम और किरदार का मुजाहिरा था। यरूशलेम की फतह पर यूरोप का रद्द अमल तो बहुत शदीद आया होगा। बहुत शदीद। इसके जवाब में तीसरी सलीबी जंग शुरू हुई, जिसकी क़ियादत यूरोप के 3 बड़े बादशाह कर रहे थे, जिनमें सबसे मशहूर इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड शेरदिल था। रिचर्ड एक जबरदस्त जंगजू और सलाहुद्दीन का हकीकी मानों में हम पल्ला था। अच्छा, उसने आते ही अक्का का शहर मुसलमानों से छीन लिया और अरसूफ की जंग में सलाहुद्दीन की फौज को शिकस्त भी दी। ये 2 अजीम हरीफों का टकराव था। लेकिन उनकी दुश्मनी में भी एहतराम का एक उन्सुर पाया जाता है, जिसके किस्से आज तक मशहूर हैं। बिल्कुल, ये तारीख की सबसे दिलचस्प दुश्मनियों में से एक है। जंग के दौरान जब रिचर्ड शदीद बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उसके लिए अपने जाती मुआलिज, फल और ठंडक के लिए पहाड़ों से लाई गई बर्फ भिजवाई। अपने दुश्मन के लिए? जी, और एक और जंग के दौरान जब रिचर्ड का घोड़ा मारा गया और वो पैदल लड़ने लगा तो सलाहुद्दीन ने ये देखकर उसके लिए 2 बेहतरीन अरबी घोड़े तोहफे में भेजे और ये पैगाम दिया कि एक अजीम बादशाह को पैदल लड़ना जेब नहीं देता। ये तो कमाल की बात है। यानी मैदान जंग में दुश्मन, लेकिन इंसानियत के नाते एक दूसरे का एहतराम भी। इस जंग का फिर अंजाम क्या हुआ? सालों की लड़ाई के बाद दोनों फरीक थक चुके थे और समझ गए थे कि कोई भी मुकम्मल फतह हासिल नहीं कर सकता। 1192 में उन्होंने मुआहिदा याफा पर दस्तखत किए। इसमें क्या तय पाया? इसके मुताबिक यरूशलेम मुसलमानों के पास ही रहा, लेकिन गैर मुसल्ला ईसाई ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की इजाज़त दे दी गई। उसी दौरान सलाहुद्दीन ने एक बहुत मुश्किल लेकिन दूर अंदेशी पर मबनी फैसला किया। वो क्या था? उन्होंने अस्कलान के खूबसूरत और मजबूत शहर को खुद ही मस्मार करने का हुक्म दिया ताकि मुस्तकबिल में सॉलुबी उसे यरूशलेम पर हमले के लिए फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल न कर सकें। अपने ही शहर को तबाह करना, ये तो बहुत तकलीफदा फैसला होगा। बहुत तकलीफदा, लेकिन ये उनकी स्ट्रेटेजिक सोच को जाहिर करता है कि वो एक शहर की कुर्बानी देकर इस्लाम के मरकज यरूशलेम को तवील मुद्दत के लिए महफूज करना चाहते थे। और उसके कुछ ही अरसे बाद 4 मार्च 1193 को उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात के वक्त की सादगी के बारे में जो कहा जाता है वो तो हैरान कुन है। वो वाकई हैरान कुन है। 55 साल की उम्र में जब उनका इंतकाल हुआ तो वो शाम और मिस्र के सुल्तान थे, लेकिन उनके जाती खजाने में सिर्फ 1 सोने का सिक्का और 47 चांदी के दिरहम थे। बस इतना? जी, बस इतना। उन्होंने अपनी तमाम दौलत अवाम, गरीबों और सिपाहियों में तकसीम कर दी थी। यहाँ तक कि उनके कफन दफन का खर्च भी उधार लेकर पूरा किया गया। एक ऐसा सुल्तान जिसकी सल्तनत इतनी वसी थी, वो एक फकीर की तरह दुनिया से रुखसत हुआ। उनके किरदार के बारे में कुछ और वाक़यात भी मिलते हैं, खास तौर पर उनके सवाने निगार बहाउद्दीन इब्ने शद्दाद ने जो लिखे हैं। जी, इब्ने शद्दाद ने उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा। वो लिखते हैं कि सलाहुद्दीन बहुत नरम दिल थे। एक बार एक सलीबी औरत रोती हुई उनके खेमे में आई कि उसकी बच्ची छीन ली गई है। उसका दुख देखकर सलाहुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फौरन फौज भेजकर उस बच्ची को तलाश करवाया। अच्छा। डाकुओं को अपनी जेब से रकम अदा करके बच्ची को खरीदा और माँ के हवाले कर दिया। ये कमाल है। दुश्मन की औरत के लिए भी इतनी हमदर्दी। और उनके सब्र का भी एक वाक़या है। हाँ, इब्ने शद्दाद लिखते हैं कि एक बार सुल्तान ने अपने मुलाजिम से 5 बार पानी मांगा और वो हर बार भूल गया। आखिर में सलाहुद्दीन ने गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर कहा, ए लड़के, लगता है आज मुझे प्यासा ही रहना है। क्या बात है। ये उनके किरदार की नरमी और सब्र को जाहिर करता है। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि एक अजीम मेमार भी थे। काहिरा का मशहूर कला, जिसे सिटाडेल ऑफ कायरो कहते हैं, उन्हीं की तामीर है।
اچھا، یہ قلعہ انہوں نے بنوایا تھا؟ جی، اور اسی قلعے میں انہوں نے پانی کی فراہمی کے لیے 280 فٹ گہرا کنواں کھدوایا، جسے آج بھی بیر یوسف یعنی یوسف کا کنواں کہا جاتا ہے۔ تو واپس اپنے ابتدائی سوال پر آتے ہیں، صلاح الدین کی میراث کیا ہے؟ کیا ان کی اصل طاقت تلوار تھی یا کردار؟ میرے خیال میں آج کی گفتگو سے واضح ہے کہ ان کی تلوار ان کے کردار کے تابع تھی۔ انہوں نے مسلم دنیا کو تلوار سے زیادہ اپنے انصاف، سخاوت اور مقصد کی سچائی سے متحد کیا۔ ان کی میراث یہ ہے کہ ایک لیڈر کی اصل طاقت اس کی فوج نہیں بلکہ اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ ہتھیار ہیں۔ یہاں سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ ہے، صلاح الدین کی سب سے بڑی فتح میدان جنگ میں نہیں تھی بلکہ دشمن کے دل میں اپنے لیے عزت پیدا کرنا تھی۔ آج کی دنیا میں جہاں اختلافات اکثر نفرت کو جنم دیتے ہیں، کیا ایک مخالف کا احترام کرنے کا یہ اصول پہلے سے کہیں زیادہ اہم نہیں ہو گیا ہے؟ اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سلطان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسمارٹ اسکوپ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ یہ تاریخی پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی گہرائی کے ساتھ۔